Good evening, ma'am. Am I audible? Yes. Okay. First, welcome to Subh Yoga Foundation everyone. मैं आपकी योगा इंस्ट्रक्टर पूनम जैन आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ. ओके. तो फर्स्ट थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जानने के बारे में कि आपने ज्वाइन किया है जिस मोटिव से और आपको कहाँ से पता चला उसके बारे में बेसिकली और आप किस फील्ड से हैं. ओके. तो लेट्स स्टार्ट विद द हिमांगी जी. Unmute yourself, ma'am. सर एक Hello रिक्वेस्ट है everyone, hello यस. everyone, myself हिमांगी from इंदौर. मुझे इस कोर्स के बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड देखा था and I was searching for the any face yoga course. तो मैंने ज्वाइन किया. I already cleared my level 1 of YCB. So I wanted to try something new, something more in this field. So I discovered this course. Thank you. Most welcome, ma'am. Okay, next Sonal, ma'am. मैंने फेसबुक पे ऐड देखा था और मैं योगा टीचर हूँ. लेवल 3 YCB लेवल 3 मैंने किया है. तो अभी मुझे ये आगे फेस योगा वगैरह सीखना है तो मैंने ज्वाइन किया. Welcome, ma'am. Next, Mayuri, ma'am. Hello, everyone. मयुरी पिराले फ्रॉम सांगली, महाराष्ट्र. तर मुझे ये आपका कोर्स के बारे में प्रियंका गर्जे करके है ना, पूना में. तो उन्होंने ये बताया ये कोर्स यहाँ लेते हैं करके. और मैं योगा डिप्लोमा किया है मैंने अभी अभी. और अच्छे मार्क्स से पास हुई हूँ, डिस्टिंक्शन से. ठीक है, तो आगे जाके मैं फेस योगा और योगा क्लास कोर्स मतलब चालू करने का इरादा है. ठीक है, थैंक Okay, यू. most welcome, ma'am. Next, Shruti ji. Hello, ma'am. Myself Shruti. I'm a physiotherapist and a yoga teacher as well. So I got to know about this course in Instagram. So I want to expertise myself in face yoga. So I have joined this course. Okay, most welcome, ma'am. Next, Sunani. Good Sunani ji. evening. Okay. Good evening. Ma'am, I'm from Bangalore and I have also done yoga teachers training course from Yoga Traya. I don't know if you know the institute, but I want to do this course only for myself because I'm nearing 50 and I thought it's time that I do something about myself. So that is the reason I'm here. Most welcome, ma'am. Thank you. Next, Mamta ji. Yes, ma'am. I am Mamta from Ambala, Haryana. Ma'am, I want to do this course for myself. Okay. Thank you. Next, Neetu, ma'am. Are you there? मैम एक्चुअली मैं अभी बाहर हूँ तो वीडियो ऑन नहीं कर सकती. पर मैम It's okay. मैंने आपसे ही योगा ट्रेनिंग कोर्स लिया था 200 cc का. और फेस योगा भी आपसे ही सीखना चाहती हूँ, तो बस इसलिए ही ज्वाइन किया था. Okay, most welcome, ma'am. थैंक यू सो मच मैम. Okay, Tejashwini ji. Tejaswini. Okay, maybe later. Okay, next. Priyanka, ma'am.
from West Bengal, Darjeeling, and I just wanted to do a specialized course in. I Yes, can't hear you properly. I just wanted to do the face yoga teacher training course so that I am specialized in this field and I can take it as a teacher, the classes. Okay, very nice, ma'am. Most welcome. Next, Vishal sir. Komal ma'am. मैम आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को फर्स्ट. Ma'am, I am Komal from Chandrapur, Ma'am, good Maharashtra. evening. Give me a second. There are two Komal here in this class. It's okay. Okay. One by one. You can Ma'am, I decide am it. Evening. Yeah. Ma'am, okay. what is the question I'm joined just now? ओके हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. आप योगा ज्वाइन कर रहे हैं, फेस योगा जर्नी, तो आपका क्या मोटिव है, एक इसलिए और एक Okay. आपके बारे में थोड़ा सा. By profession, I'm fitness instructor. I'm already fitness coach. So that's why मेरे पास सारी सर्टिफिकेट्स है. ओनली फेस योगा की नहीं थी. So I'm planning for that. ओके, मोस्ट वेलकम. वेरी नाइस मैम. कोमल जी नेक्स्ट. Okay. Ma'am, I am Komal from Chandrapur, Maharashtra. और मेरी मैम योगा ट्रेनिंग टीचर का क्लास शुरू है और इसीलिए फेस योगा भी कर रही हूँ साथ ही में. ओके मैम, मोस्ट वेलकम. इज देयर एनीवन लेफ्ट? इति. हाय, मेरा नाम इति श्रीवास्तव है और मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है योगिक साइंस में. साथ ही मैं एक एडवांस न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हूँ. और जस्ट टू ऐड फेस योगा इन माय सीवी, वन मोर feather, so that is why I have joined. Thank you. ओके, मोस्ट वेलकम. ओके, इज देयर एनीवन लेफ्ट? मान्या जी. ओके, वन मोर. Pradanya ma'am. Ma'am, unmute yourself first. Oh, so sorry. So sorry. I said I'm myself is Pradnya from Mumbai. I'm already into meditation space. So I wanted to learn about this face yoga so that I could incorporate in my practice. Most welcome, ma'am. Okay, so is there anyone left? S. Kumar. Hello. Yes, sir. Good evening. Hello. Good evening, sir. Yes, ma'am. I'm just asking about yourself and about the face yoga. Why you are joining us? So there's basically some reasons. Just about. मैम हिंदी में बोल सकते हैं? हाँ श्योर सर, आप बस अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा, डिस्कशन कीजिएगा, और आपने जो फेस योगा जर्नी ज्वाइन की है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, मतलब आप सीखना चाहते हैं अपने पर्पस से, लोगों को सिखाने के पर्पस से, मतलब मोटिव. मैम मैं नालंदा बिहार से हूँ. हेलो. हेलो. यस सर, आपका ऑडियो क्लियर है. मैम नालंदा बिहार से हूँ मैं, और ये फेसबुक के माध्यम से हमको इसके बारे में, फेस योगा के बारे में पता चला था जी. और फिर मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ और लोगों को सिखाना भी चाहता हूँ. मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ बहुत 2-3 साल से, 4 साल से. ओके सर, मोस्ट वेलकम सर. जी, थैंक यू मैम. ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. यस आई थिंक शैलजा जी. यस
Ma'am, you are on mute. ओके, फर्स्ट मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट क्लियर कर देती हूँ जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो फिर हम उसके बाद आगे फेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली हमारे इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, लाइक 60 to 90 टाइप्स ऑफ फेशियल प्रैक्टिसेस। ओके, सेम एज आपकी फेस क्लिनजिंग रूटीन और फेशियल मसाज और प्रैक्टिसेस सब इसमें इंक्लूड रहेगा। सेम एज द डाइट, क्योंकि डाइट बहुत मैटर करती है। आप जो भी खा रहे हो पी रहे हो, आपकी लाइफ स्टाइल भी बहुत मैटर करती है। तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में भी यहाँ आपका इंक्लूडेड रहेगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, क्योंकि वो आपको रिलैक्स करते हैं। आप लोगों ने रिफ्लेक्सियोलॉजी के बारे में सुना होगा। अरे वो 3 दिन राइजिंग राजस्थान चल रहा था ना, तो रिफ्लेक्सियोलॉजी जैसे कि आपके फेस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो आपकी किसी डिसीज को कैसे रिलैक्स करते हैं। जैसे कि जब आप फेस योगा जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आप फेस में जो नॉर्मल चेंजेस आपने सुना होगा कि आप अच्छे दिखने लगते हैं, आपकी फाइन लाइंस कम हो जाती हैं, आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग और शाइनी और नेचुरली ब्यूटीफुल हो जाती है। मेरी वॉइस क्लियर है एवरीवन? नो मैम, नहीं बीच में मैम, कट रही है। आपकी Your आवाज voice कट is रही है। breaking. Your voice is breaking. हेलो, आपकी ओके आवाज ओके, बीच में कट रही है। नाउ इट इज क्लियर? ओके, तो बेसिकली जैसे आप फेस योगा स्टार्ट करते हो, आप फेस में चेंजेस क्या देखते हैं कि आपके फेस पे जो फाइन लाइंस हैं वो ठीक हो रहे हैं, एंड सेम एज आपकी स्किन टाइट हो रही है, आप हेल्दी दिखने लगे हो। हेल्दी मीन्स लाइक आपकी स्किन का जो नेचुरल ग्लो है वो आपको देखने को मिलेगा। आपके डार्क सर्कल हैं, रिंकल्स हैं, आप उन पे कवर अप कर लेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं लाइक डिसीज की, लाइक आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है तो आपके डार्क सर्कल दिखेंगे। तो वो इम्प्रूव हो सकता है आपका यदि आप फेस योगा मसाज करना स्टार्ट करेंगे, फेस योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सेम एज बहुत सारे लोगों को साइनस की प्रॉब्लम रहती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, बहुत तरह के हेडेक्स रहते हैं, इवन वो भी आपके क्योर हो जाते हैं आपके फेस योगा स्टार्ट करने से। तो इसमें हम जब एक्यूप्रेशर सीखेंगे तो वो पॉइंट्स आपके यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं ताकि आप उनको क्योर करते चलें। ओके, तो डाइट, एक्यूप्रेशर, सेम एज आपके फेस पैक और ऑयल, उनको लगाने का तरीका, किस प्रकार अप्लाई करना है, किस प्रोसेस क्या है उसकी, वो सभी चीजें भी आपको मेंशन किया जाएगी। अबाउट द फेशियल एनाटॉमी, तो लाइक आप जो मूव कर रहे हो तो मसल्स जो आपके पुल कर रहे हो तो उनका बेसिकली मूवमेंट, मसल्स नेम और उनकी अवेयरनेस। ओके, तो फेशियल अवेयरनेस और एनाटॉमी इसमें आपका पार्ट इंक्लूडेड रहेगा। इसके साथ साथ कुछ प्राणायाम आपको सिखाए जाएंगे बेसिकली जो आपको रिलैक्स करते हैं। ओके, क्योंकि जितना भी आप ट्राई कर लीजिए, अगर स्ट्रेस है तो वो आपके फेस पे दिखाई देगा। लाइक आप टेंशन है तो वो आपके फेस पर प्रेशर देगा और लाइंस क्रिएट करेगा, आपके मसल्स को स्टिफ करेगा, आपके डार्क सर्कल क्रिएट करेगा, आपके स्लीपिंग पैटर्न को खराब करेगा। तो उसके लिए आपको प्राणायाम जरूरी है। सेम एज अगर हम नॉर्मली बात करें डाइट भी हम यहाँ क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, ये तो फेस योगा है तो वो हमने इसलिए इंक्लूड किया है आपको हेल्दी टिप्स, क्योंकि अगर बॉडी में कमी आ रही है, खून की कमी हो रही है, आप सभी जानते होंगे एनीमिया, तो आपकी स्किन अजीब सी ब्लैक डार्क दिखने लगती है। ठीक है, अगर आप स्किन की बात कर रहे हो तो अगर अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो तो एक्ने पिंपल्स या आपको स्किन रिलेटेड डिसीज दिखाई देने लगेगी। तो उनको क्योर करने के लिए आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक डिस्कशन इसमें हमारा वो भी इंक्लूड रहेगा। हस्त मुद्राएं, जो कि हमारे स्किन के लिए कौन सी अच्छी होती हैं, कुछ हस्त मुद्राएं आपको यहाँ सिखाई जाएंगी जो आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग आपके स्किन के लिए बहुत हेल्दी होती है। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स आपके यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगे। क्लियर है? इसके अलावा फेस पैक मैंने मेंशन कर दिया किस प्रकार क्लेंजिंग करनी है। अब रही बात आज के समय में टूल्स की, तो आप सभी देखते होगे इस तरह से टूल यूज करो, आप ये भी टूल देख रहे हो, आप कहीं ग्वासा देख रहे हो, जेड रोलर देख रहे हो, इवन कई बार हमें नेम भी नहीं पता होते है ना। आजकल तो मार्केट में हर तरह की चीजें अवेलेबल है। तो बेसिकली आपको ये मेंशन किया जाएगा कि आपको किस प्रकार के टूल परचेस करने हैं, और नेसेसरी नहीं है किसी के लिए भी कि आप टूल परचेस करिए, क्योंकि हैंड मसाज इनफ है। ओके, अदरवाइज बेसिकली आप स्पून से भी मसाज कर सकते हो। और एक दो टूल जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छे हैं, वो आपको सजेस्ट कर दिए जाएंगे। ओके, तो उसकी डिटेल्स आपको ग्रुप में मिल जाएगी।
क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि लाइक अगर आपको बोला जाए कि आप 5 to 7 टूल्स लीजिए, अब तो मार्केट में आप देखोगे नए-नए पैटर्न मिल रहे हैं। तो बेसिकली आपके लिए क्या बेस्ट है, वो आपको सिखाया पूरा जाएगा, लेकिन आपको बता दिया जाएगा आपको परचेस करना है तो आप सीख सकते हैं और परचेस भी कर सकते हैं। ठीक है? तो सभी चीज़ें आपको ग्रुप में मेंशन कर दी जाएंगी। तो ये सभी चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। ओके, तो बात करते हैं हम फेस योगा की। तो फेस योगा जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिकली फेस से हम लोग क्या सोचते हैं, लाइक आपका फेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। नो, फेस स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता। आपकी रिंकल्स, लाइन, स्किन टाइटनिंग हो सकती है, लेकिन आप सोचो कि आपका गोल फेस है और मैं आपको बिल्कुल फ्लैट फेस कर दूंगी, तो ऐसा नहीं होगा, है ना? यानी बोन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता आपका। ओके, आपके चीक्स हैवी हैं, उनको फ्लैट किया जा सकता है, स्लिम किया जा सकता है, क्योंकि वो मसल वाला पार्ट है, टोन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप सोचो कि बोन स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, नोज मैं कहूँ ऐसी ब्रॉड है, एकदम से बिल्कुल फ्लैट पतली कर दिया, वो नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हो कि आप फेस योगा सीखने जरूर आए हो, लेकिन उसका बेसिक मोटिव क्या है कि आप अपने मसल्स को टोन कर सकते हो, आप हेल्दी दिख सकते हो, लाइक स्किन आपकी यंग दिख सकती है, लाइन्स रिंकल कम कर सकते हो, फेस पे नेचुरल ग्लो देख सकते हो, साइन देख सकते हो। ठीक है, आप अपनी एज से यंग दिख सकते हो। और सेम एज आपकी जो कुछ फिजिकली प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, गिव मी अ सेकेंड, सो आप उनको भी कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे एक सेकंड दीजिएगा अपनी बात कंप्लीट करने का, फिर हम बीच में डिस्कशन भी करेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही बोलूंगी, आपको भी मौका दिया जाएगा। मैं एक पॉइंट कंप्लीट करने का आपसे डिस्कस भी करूंगी उसके बारे में। ठीक है, तो ये तो सभी को पता होगा, लाइक हम फेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम फेस योगा में लाइक अबाउट लाइक दिस वन इज अ फेस, पढ़ते तो हम यही है ना कि फेस ये है, बट हमारा ऑल ओवर द टॉपिक क्या होता है, नॉट ओनली द फेस, इट अबाउट द क्लीवेज पार्ट आल्सो इंक्लूडेड। ओके, द नेक, सेम एज द नेक, बैक इंक्लूडेड, क्योंकि आप देखो लाइक इधर मेरा फेस अगर बहुत ज्यादा अच्छा दिखे और नेक बहुत ब्लैक और ये पार्ट मेरा नेक का ब्लैक दिखे तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा, है ना? तो क्लींजिंग रूटीन या आपकी जो फेस की बात की जाती है, क्योंकि मसल्स की भी बात की जाए तो ये मसल पूरी कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो आपका पूरा फेस टू चेस्ट क्लीवेज पार्ट तक इंक्लूड रहेगा। लेकिन जब आपको चीजें बताई जाएंगी तो उसमें आपका हैंड पार्ट भी इंक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी आप अप्लाई कर रहे हो या जो भी आप स्किन पे अप्लाई करने वाले हो, क्योंकि अगर आपके हैंड क्लीन नहीं है, और हैंड्स की बात करूं मैं, तो आप बार बार स्किन को टच करोगे या कुछ अप्लाई करोगे, तो थोड़ा सा हम लोग क्लिनजिंग या बाकी सभी चीजों की बात भी करेंगे, तो उसमें आपका हैंड पार्ट भी इंक्लूडेड रहेगा। ओके, ठीक है, तो अभी तक कोई डाउट, थोड़ा सा डिस्कशन इससे रिलेटेड अभी तक कोई चीज करनी है तो आप कर सकते हैं। बाकी एक रिक्वेस्ट रहेगी, कैमरा ओपन रखेंगे तो डिस्कशन करना बहुत इजी होता है और अट्रैक्टिव लगता है। थैंक यू। ओके, तो फर्स्ट बेसिकली जब हम फेस योगा स्टार्ट करेंगे तो मेरा एक रिक्वेस्ट, सभी लोग स्ट्रेट बैठेंगे। ओके, नॉट लाइक नेक बैक हम, ये भी हमारे नेक पोस्चर को खराब करता है, नेक लाइंस क्रिएट करता है, टर्की नेक, यहाँ नेक लूज हो जाती है। आप न्यू करना स्टार्ट करो, आपकी यहाँ की स्किन लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, नेक लाइंस स्टार्ट हो जाएगी, शोल्डर स्टिफनेस स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये मसल्स टाइट हैं, आपका पोस्चर ऐसा दिखेगा। अब मेरा फेस कितना भी अच्छा दिखे, एम आई लुक गुड? नॉट, क्योंकि प्रेशर दिख रहा है। सेम एज मेरे क्लीवेज पार्ट, ये चीज झुकेगी तो चेस्ट पार्ट भी लूज होगा। ठीक है, तो याद रखिए आपका पोस्चर बहुत मैटर करता है ना? और जैसे आप बात करते हैं लाइक फेस योगा स्टार्ट करेंगे तो सेम है, आपके स्किन टोन में आप सोचो इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है आप बिल्कुल फेयर हो जाओगे। इट्स अबाउट यू कैन इम्प्रूव द लाइक 1 to 2 टोन, आपकी 1 से 2 टोन स्किन में चेंजेस आते हैं, क्योंकि जो अगर नॉर्मली डार्क होगी वो थोड़ा सा क्लीन हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इम्प्रूव होता है। तो वो साइन और नेचुरल ब्यूटी है, वो आपकी बाहर आती है फेस योगा से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट आपका क्लिनजिंग रूटीन, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक, उसी से आपकी मोस्ट ऑफ चीजें क्लियर हो जाती हैं। मैं आज एक शॉर्ट इन्फो दे दूंगी, बाकी डिटेल हम पूरा कल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक अपने आप में डिटेल्ड है। ठीक है, तो क्लिनजिंग रूटीन आप सभी लोग फेस क्लीन करते हैं। ठीक है, सभी लोग फेस क्लींस करते होंगे, लेकिन फिर भी हमारी क्या वीकनेस रह जाती है, वो यहाँ डिस्कशन की बात है कि आप इस पार्ट को अच्छे से क्लीन नहीं करते। तो हमने देखा होगा नोज का ये पार्ट डार्क दिखाई देता है, यहाँ एक्ने। और क्यों गंदगी होती है? क्योंकि पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं, जो कुछ भी है वो क्लीन ही नहीं हुआ अच्छे से। सेम एज दिस वन पार्ट, दिस वन पार्ट, दिस वन पार्ट। तो जब आप फेस क्लीन करोगे तो अगेन फेस की बात नहीं हुई, फेस के सभी कॉर्नर्स को अच्छे से क्लीन करना है, नेक पार्ट भी क्लीन करना है। आप कोशिश कीजिए अपने नेक बैक को भी, कोशिश करने का मतलब डेफिनेटली ट्राई कीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं लाइक इस पार्ट को हमने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया, लेकिन हमने नेक छोड़ दिया, तो इधर की स्किन तो बढ़िया अच्छी दिख रही है, साफ सुथरी क्लीन। अब पीछे देखो आप, नेक अजीब सी डार्क दिख रही है।
मैल इकट्ठा हो रहा है, स्किन में रैसेस होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्लींजिंग रूटीन फर्स्ट, आपको फेस अच्छे से क्लीन करना है। आप आराम से 30 सेकेंड तो आपको मिनिमम लेना ही है। आप ट्राई कीजिए 1 मिनट तक क्लीनिंग करने का टाइम। क्यों? अब स्टेप कैसे? क्योंकि आप नॉर्मली ऐसे फेस क्लीन किया और ये नहीं करना, यानी कि आपको फेस ड्रैगिंग नहीं करनी है, आप हैंड को नीचे की ओर पुल डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी अपने आप में एक अच्छा फैक्टर मिल रहा है आपको, जो आपको खड़े होने में सपोर्ट करता है, लेकिन आपके स्किन को भी लूज करता है। सैगिंग भी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हर चीज जो है वो नीचे खींची जा रही है, तो आपकी स्किन भी ऐसे ही लूज होती है, ठीक है। सेम एज फैक्टर भी मैटर करता है, कोलेजन भी बहुत मैटर करता है। इस सब के बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब बात कर रहे थे क्लींजिंग की, तो क्लींजिंग आपने फेस की। अब 1 मिनट क्यों या 30 सेकंड की जो बात की है, एटलीस्ट 30 सेकंड तो करना है। अब आप फेस पे अच्छे से क्लींजिंग करोगे, इन पार्ट्स को टाइम दोगे, ये पार्ट भी डार्क दिखाई देते हैं, अच्छे से क्लीन करोगे, ये पार्ट जो छूट जाते हैं, इनको क्लीन करते करते आपको डेफिनेटली 1 मिनट हो जाएगा या 30 सेकंड अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे अच्छे से, अगर आप क्लीन करते हो। और क्लींजिंग क्यों जरूरी है? जब आप एक्ने पिंपल्स की एनाटॉमी पढ़ोगे कि पोर्स में, आपका पोर्स में अगर कोई भी क्रिटिकल पार्ट रह गया और वो एयर से अगर इफेक्टेड हो रहा है या ब्लॉक रह गया, तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। फिर वहां पे आपको बम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो हो सकता है ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, प्लस्टर, बहुत सारे फॉर्म बन सकते हैं अलग अलग तरीके से, गंदगी से फ्लॉक रह जाने की वजह से। इवन नॉर्मली आप देख लो, अच्छे से क्लीन नहीं किया तो डार्क दिखना स्टार्ट हो जाएगी स्किन। अब फेस अच्छा दिख रहा है, गाल अच्छे चमक रहे हैं, लेकिन ये पार्ट आपने दिखा होगा लोगों का बहुत ब्लैक दिख रहा है, यहाँ अजीब सी गंदगी दिख रही है। इसलिए क्लींजिंग रूटीन बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए, ठीक। अब क्लींजिंग में भी देखो बहुत सारे आप देख रहे हो, लाइक ट्वाइस क्लींजिंग चल रहा है। तो ये क्या है? ट्वाइस क्लींजिंग यानी 2 बार क्लींजिंग, जिससे भी आप क्लीन करते हो, लाइक अच्छे से वाटर से, सोप से, फेस वॉश से, जो भी फेस वॉश अभी तक आप यूज करते हो उससे। क्लींजिंग में अच्छे से क्लीन करना अपने पोर्स के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल या मेकअप या डस्ट पार्टिकल, एक्चुअली क्या होता है, हम डस्ट पार्टिकल इमेजिन करते हैं लाइक हम तो बाहर गए ही नहीं है, तो गंदगी किस बात की। लेकिन आप हर एक सरफेस को टच करते हो, और सेम एज कई बार वो हाथ आप अपने फेस पे टच करते हो, तो वो डस्ट पार्टिकल जा रहा है आपके फेस पे। आपके आसपास भी आपको देखने को मिल जाएगा डस्ट पार्टिकल, है ना। नॉर्मली हमें नहीं समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो सब हमें इफेक्ट कर रहा है। तो ट्वाइस क्लींजिंग आपको 2 बार फेस क्लीन करना है। फर्स्ट यू क्लीन एंड देन टैप इट। आप एक बार अच्छे से सुखा लीजिए फेस को, देन अगर नहीं भी सुखाते तो इट्स ओके, डायरेक्टली क्लीन, जरूरी नहीं है आप सुखाएं। ट्वाइस क्लींजिंग मतलब 2 बार फेस क्लीन करना। आपने सोप वाटर से फेस क्लीन किया, अच्छे से स्प्लैश किया, स्प्लैशिंग बहुत जरूरी है, वो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगी, आपके पोर्स को क्लीन करेगी। देन अगेन क्लीन, फिनिश। ओके, क्लींजिंग फिनिश हो गई बेसिकली। और आपको नॉर्मली अपने किसी भी कॉटन टॉवल से अच्छे से अपना एक अलग से रखिए क्लीन। क्लीन यानी कि क्लीन, क्योंकि यही वाली बात वापस है कि आपने फेस क्लीन किया लेकिन आप गंदे टॉवल को यूज करो या अच्छे से क्लीन नहीं है, तो वापस आप इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जिस किसी का माइक अनम्यूट है प्लीज माइक म्यूट कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। ओके, क्लींजिंग के बाद आती है टोनिंग। तो भाई जो स्टेप्स हैं बेसिकली, टोन वर्ड समझ रहे हैं आप, टोन कर रहे हैं नहीं, टाइटन करना। अब क्या टाइट कर रहे हैं? तो आपके पोर्स, अब आपने फेस को क्लीन कर लिया, जो पोर्स में था सब क्लीन कर दिया, अब पोर्स ओपन रहेगा। अब आप उस पर कुछ भी अप्लाई करोगे, अगर टोनर नहीं अप्लाई किया तो पोर्स तो ओपन रह गया, जो कुछ भी अप्लाई किया वो उसमें फिक्स हो जाएगा। तो उस पोर्स को फिल करने के लिए, यानी अपने पोर्स को श्रिंक करने के लिए, टाइट करने के लिए हम टोनर यूज करते हैं, ठीक है। तो आप अगर स्किन को गौर से देखोगे तो आपको यहाँ बहुत अच्छी, कई जगह अगर नहीं समझ आता है तो यहाँ दिखाई दे जाते हैं, यहाँ आपको पोर्स दिखाई दे रहे, ओपन पोर्स। अगर स्टार्टिंग में नोटिस नहीं करते तो स्मॉल पोर्स होते हैं, लेकिन बाद में आप देखोगे तो बहुत लार्ज पोर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं कई लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? बेसिकली टोनर यूज करना है। तो टोनर टिपिकली आप 2 तरह के यूज कर सकते हो, मार्केट बेस भी यूज कर सकते हो, बस अल्कोहल बेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा सबसे बेस्ट गुलाब जल, गुलाब जल, ठीक है। तो गुलाब जल आप सभी लोग जानते होंगे, रोज वाटर, इट्स रियली गुड। आप उसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने का तरीका वाटर बेस होता है। आपने फेस क्लीन किया, ड्राई किया, ट्वाइस क्लींजिंग के बाद आपने थोड़ा सा अपने हाथ पे अप्लाई किया, स्प्रे वाला है तो स्प्रे वाला अप्लाई किया, बस अप्लाई करके, और अब उसे मसाज नहीं करना, लाइक नो नीड, आप उसे नॉर्मली टैप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो उसमें आपको हो सकता है लाइक 30 सेकंड लगे, 1 मिनट, उसको एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए, आपके पोर्स को श्रिंक हो जाने दीजिए। अब आप अपने नेक्स्ट स्टेप लीजिए।
तो बेसिकली मैंने रोज वाटर का नाम लिया, आइस वाटर भी अच्छा होता है, आइस क्यूब भी अच्छा होता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट की बात कर रही हूँ मैं। इसके लिए एक बेसिकली रूल आपको याद रखना चाहिए, आइस क्यूब या आइस की जब हम बात करते हैं तो देखो पर्सन के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए साइनस, क्योंकि अगर आप किसी चीज को ट्रिगर आप कर रहे हो तो आप कितना भी फेस क्लीन कर लो, आप बाकी कहीं ना कहीं किसी चीज को इफेक्टेड कर रहे होगे। तो अगर साइनस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ और यहाँ पेन रहता है, साइनस का ये पार्ट होता है आपका, तो आप वापस अगर आइस यूज कर रहे हो तो आपको जल्दी एलर्जीज होना स्टार्ट होंगी और आपका साइनस बना रहेगा और बिगड़ भी सकता है। ठीक है, तो आप केवल जो आपका नेचुरल टैप से ठंडा पानी आता है उससे स्प्लैश कर सकते हैं। ठीक है, 20-30 टाइम्स गुड है। अदरवाइज आइस क्यूब नहीं यूज करना चाहते तो रोज वाटर बेस्ट था आपके लिए। लेकिन अब देखो मैं यहाँ पे जब स्किन अकॉर्डिंग बात करती हूँ, लाइक आई हैव ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन, तो आइस क्यूब यूज करती हूँ, बट उसे हमेशा किसी कपड़े में कवर करके फिर फेस पे अप्लाई करती हूँ, डायरेक्टली नहीं, ताकि मेरी स्किन को डैमेज ना करे, ड्राई ना करे। और रेगुलरली करने की जरूरत नहीं है, आप वीकली ट्वाइसली यूज कर सकते हैं। तो टोनर में रोज वाटर ही बेस्ट है, आजकल राइस वाटर भी चल गया है, तो आप उससे भी फेस वॉश करके थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। बहुत पैटर्न है, आप बना भी सकते हैं, तो आपको स्किन की उसकी डिटेल भी शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, टोनर क्लियर हुआ हम क्यों यूज कर रहे हैं, बोर्ड स्टोन कौन की है। नेक्स्ट थर्ड, तो सीरम। अब बेसिकली आज के समय में अब सीरम की बात क्या चल रही है, सीरम एक्चुअली जो आपकी बॉडी इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं सीरम से पहले, तो सीरम एक्चुअली क्या है, वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम नॉर्मली इनटेक कर रहे होते हैं, विटामिन, ठीक है, इस तरह के मिनरल्स जो हमें हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है, विटामिन B3, B6, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इन्हीं के नाम जो आप बोलते हैं रेटिनॉइड, या आप जो नेम ले रहे हो वो सब एक्चुअली क्या है, इन्हीं के दूसरे नेम है, आप उन्हें शॉर्ट फॉर्म में अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हम इस इंग्रेडिएंट को जैसे डाइट में ले रहे हैं, लेकिन अब क्या हमारे स्किन को जरूरत पड़ रही है ऊपरी लेयर पे, तो इस प्रकार आप यूज कर रहे हैं। अब सीरम हम कब यूज करते हैं, जब आपको लिटरली फेस पे प्रॉब्लम है, याद रखिए, अदरवाइज इतनी लेयर्स की जरूरत नहीं है। सीरम का बेस्ट रूल है, जब मैं सीरम आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी वहां मेंशन करूंगी, अगर आपके फेस के अकॉर्डिंग आपको जरूरत है, लाइक आपको एक्ने पिंपल्स है, उस अकॉर्डिंग सीरम यूज कीजिए, आपके फेस पे स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, उस अकॉर्डिंग यूज कीजिए। तो सीरम का टॉपिक हमारा अलग से रहेगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम सीरम यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सप्लीमेंट्स की तरह ले रहे हैं, अब वो सप्लीमेंट्स हमें फेस पे जरूरत है अगर स्किन के अकॉर्डिंग, तो हम यूज करते हैं। तो उसको लगाने का तरीका, आपने फेस क्लेंजिंग की, टोनिंग कर लिया, अब सीरम की जरूरत है, सीरम आपने अप्लाई किया अपनी स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपने अप्लाई किया, हल्का सा उससे आप जेंटली मसाज कर सकते हैं। तो मसाज के स्टेप सिखाए जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बाकी आप हैंड मूवमेंट ट्राई कीजिए कि आप लिफ्टिंग और एंड कंप्लीट कीजिएगा बस अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, बाकी मैं आपको जल्द से जल्द मेंशन कर दूंगी। तो सीरम आप फेस पे अप्लाई कीजिए और आप उसे तब तक अप्लाई कीजिए हल्का सा, और कितना लेना है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा फेस पे अप्लाई कर लिया, 1-2 ड्रॉप्स इनफ है आपके फेस के लिए। ठीक है, तो सीरम का ऐसा नहीं है कि आपने पूरी बोतल ली और अप्लाई कर ली, लाइक 3-4 ड्रॉप्स इधर, और आपको ऑयल मसाज नहीं करनी है, उसके लिए हमारे पास और दूसरी चीजें हैं मसाज के लिए। ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे, सीरम, अगर आपके फेस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है, और उससे जेंटली मसाज कीजिए, उसे ड्राई होने दीजिए, आपकी स्किन में जाने दीजिए, आप बेसिकली आपके 3 स्टेप क्लियर हो गए। ठीक है, तो 2 बेसिकली जरूरी थे, तीसरा आपके अकॉर्डिंग टू स्किन प्रॉब्लम डिपेंड करता है। और बात करते हैं नेक्स्ट 4 स्टेप, फिर 4 स्टेप की। ठीक है, तो 4th स्टेप क्या है आपकी, मॉइस्चराइजर। तो बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत है कि मॉइस्चराइजर जब सीरम अप्लाई कर लिया, या मेरी ऑयली स्किन है, मैं क्यों अप्लाई करूं, इतना ऑयल आ रहा है, क्या जरूरत है मॉइस्चराइजर की। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता, मॉइस्चराइज आपकी स्किन को हाइड्रेट, या आपने जो भी अप्लाई किया उसको लॉक करके रखता है, बैरियर बना के रखता है एक तरीके से। ठीक है, स्किन में ड्राइनेस नहीं आने देता। तो मॉइस्चराइजर का भी डिटेल हम अलग से डिस्कशन करेंगे। आपको किस प्रकार का मॉइस्चराइजर सूट करता है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा ड्राई स्किन वाले हैं तो उस अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर अच्छा यूज कीजिए, आप ऑयली स्किन वाले हैं तो ऐसा नहीं कि मॉइस्चराइजर नहीं आता, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज करके देखिए, आपको थोड़ा टाइम बाद समझ में आने लगा कौन सा मॉइस्चराइजर अच्छा है।
ऐसे भी मॉइस्चराइजर आते हैं जो मॉइस्चराइज तो करते हैं अंदर से, लेकिन आपको ऊपर ऑयल नहीं आने देते, लाइक जो आप ऑयलीनेस फील करते हो ऑयली स्किन के कारण, ठीक है। बट जरूरी है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लाइक जैसे आप पूरे दिन में हीट कर रहे हो, लाइक स्वेटिंग आ रही है, वो सब तो अलग बात है, लेकिन अंदर से उसने लॉक करके रखा उन चीजों को जो आपकी स्किन को हील कर रही है, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को मॉइस्ट बना के रखने के लिए, लाइक सॉफ्टनेस बनाए रखने के लिए भी आप उसे ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया हमारे 4 स्टेप। अब इसमें भी आपको टाइम देना है। मॉइस्चराइजर को भी आप स्किन पे आराम से अप्लाई कीजिए, प्रॉपर, सिंपली कुछ नहीं, आप हैंड का मूवमेंट अपने फेस के अकॉर्डिंग ले लीजिए, सिंपल बस, ओके, जस्ट लाइक दिस चलेगा, ठीक है। तो आप सिंपली मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए और उसके बाद भी टाइम दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, सेम है, हल्का सा मसाज हो जाएगी आपकी, 1-2 हैंड मूवमेंट अच्छे से प्रॉपरली हो जाएंगे आपके, क्लियर। नेक्स्ट गो फॉर द सन क्रीम। अब बेसिकली लोगों का कहना है कि सन क्रीम क्या है, पहले तो इतना नहीं था, अभी आप देखते हो, आपने सुना होगा ओजोन लेयर में छेद भी हो गए, है ना, और बहुत सारी यूवी रेज भी इफेक्ट करती हैं। और मैं इसका एक प्रूफ भी आपको दूंगी कि हमें सन क्रीम क्यों यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे स्किन में पिगमेंटेशन, एजिंग फैक्ट्स का बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तो इसका आपको पिक्चर भी शेयर किया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। ये हमारा इंट्रो सेक्शन है, तो मैं आपकी सभी चीजें अभी क्लियर कर दे रही हूँ। सिर्फ फेस क्लिनजिंग ये आपको फॉलो करनी चाहिए इसलिए, ठीक है। तो आपका सन क्रीम आप अप्लाई करेंगे। सन क्रीम का बेसिकली रूल क्या है, जब आप बाहर जाने वाले हो कहीं, उसे 20 मिनट पहले अप्लाई कर लीजिए, एटलीस्ट 20 मिनट पहले, बिफोर यू गोइंग आउट आप उससे 20 मिनट पहले अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ताकि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके, ओके। अब सन क्रीम कब नहीं लगानी है, जब आप बहुत सारी मेकअप लेयर यूज कर रहे हो, लाइक कंसीलर, फाउंडेशन, प्राइमर, तो आपको जरूरत नहीं, क्योंकि वहां आपकी स्किन पर ऑलरेडी लेयर हो गई, तो आपकी स्किन ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अदरवाइज फिर भी आप किसी रीजन से स्किप कर रहे हो तो अच्छा नहीं है, लेकिन आप अगर चाहे तो किसी भी ऐसे स्कार्फ से कवर कीजिए जो लाइट कलर का हो, बेसिकली वाइट बेस्ट होता है इसमें, ताकि वो यूवी रेज को या सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपनी स्किन को बचा सकते हो। बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स भी लाइक सन रेज के बाद होने लगती है, ठीक है। तो स्किन प्रोटेक्शन के लिए हमारा इसलिए सन क्रीम लगाना जरूरी है। अगर आप घर में हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा, कई सारे स्किन स्पेशलिस्ट भी नहीं सजेस्ट करते कि लाइक घर में अप्लाई करके रखो, लेकिन अगर अभी न्यू स्टडी के बारे में मैं डिस्कस करूं, तो मैंने कुछ स्टडी में मतलब स्टडी में रीड किया था कि लाइक जो हमारी लाइट्स होती हैं वो भी हमें टैन करती हैं, और सेम एज यूवी रेज, अगर मैं बात करूँ सनलाइट, तो वो बाहर तो है और घर में भी आपको वो लाइट फील होती होगी ना, क्योंकि रोशनी हमारे अगर आसपास है, उसका रीजन क्या है, सन, तो वो रेज कहीं ना कहीं है। इसलिए अगर आप नेचुरली अगर फेस पे कोई और मेकअप वगैरह नहीं लगा रहे हो, तो अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप सन क्रीम जरूर लगाइए, ठीक है। लाइक आप क्रॉस 30 क्रॉस है, 25-30 क्रॉस है, तो अपने स्किन के अकॉर्डिंग से बाहर नहीं जा रहे तो 30 SPF वाला सन क्रीम आप लगा के रख सकते हैं। अदरवाइज बाहर जाने वाले हैं और आपको पता है आपका पूरा दिन धूप में काम का है, ठीक है, तो आप 50 SPF तक सन क्रीम यूज कर सकते हैं। उसमें भी बहुत तरह के आते हैं, लोगों को लगता है लाइक पैची है, ऑयली है, चिपचिपी है, बट आप ट्राई करोगे तो कोई ना कोई एक ऐसी क्रीम होगी जो आपको सूट कर जाएगी। याद रखिए, स्किन कंसर्न में जब भी आप बात करेंगे तो आपको लगेगा लाइक ये इसको सूट करता है, मुझे भी सूट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। चाहे वो ये भी मैं भी बोलूं लाइक मेरी ऑयली और सेंसिटिव स्किन है, सेम यही वर्ड कोई और बोल रहा है, बट फिर भी डिफरेंसेस होते हैं, ओके। तो प्रोडक्ट जब आप यूज कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो आप उसके पैच टेस्ट लीजिए। पैच टेस्ट मतलब थोड़ी क्वांटिटी में अप्लाई करके देखिए और आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद ट्राई कीजिए। अदरवाइज अगर वो रिएक्शन करेगा तो आपने पूरे फेस पे लगा लिया तो प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा हो गए, है ना। और थोड़े पार्ट पे लगाया तो उसे हील भी कर लोगे, प्रोटेक्ट भी हो सकते हो आप। क्लियर। तो ये आपका बेसिक रूल था फेस क्लिनजिंग का। यही अकेला रूटीन फॉलो करने से आप 30 डेज में अपने चेंजेस देख सकते हो। इवन एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम, आपके स्किन में अनइवन टोन, डार्कनिंग और फेस पे शाइन, ये नेचुरली आपके धीमे धीमे अच्छी और बुरी चीजें खत्म होती जाएंगी। ये फेस क्लिनजिंग रूटीन क्यों जरूरी है आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली हमारी 3 स्टेप नॉर्मली मेन है, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ठीक। सीरम क्यों, क्योंकि आपके फेस के अकॉर्डिंग है। सन क्रीम क्यों, अगर आप बाहर जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यही रूटीन नाइट में है, ट्वाइस क्लिनजिंग, ठीक। नाइट में क्यों, अब आपने इतना सारा
अगर मेकअप या प्रोडक्ट लगाए हैं, अब अपने स्किन को रिलैक्स नहीं होने दिए। जैसे आप घर आते हो तो मेकअप में जो पार्टी वेयर ड्रेस पहन के जाते हो उसमें आप कंफर्टेबल नहीं होते, सोने आने के लिए आप बिल्कुल लूज कपड़े प्रेफर करते हो ना, रिलैक्सिंग वाले क्लॉथ्स। आप अपने पार्टी वेयर कपड़े में सो नहीं सकते, ऐसे ही आपकी स्किन को रिलैक्सिंग चाहिए। तो जब आप सोने जाते हो तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स करती है, स्किन रिलैक्स करती है, ऑर्गन्स भी रिलैक्स करते हैं। उस अकॉर्डिंग आपके स्किन को रिलैक्स करने के लिए क्लिनजिंग जरूरी है, अगेन ट्वाइस क्लिनजिंग। मॉर्निंग में एक ही बार क्लिनजिंग करोगे चल जाएगा, लेकिन नाइट में ट्वाइस क्लिनजिंग कंपलसरी है। अब आप सोचो कि आपने सिंपली मिल्क से क्लिनजिंग कर ली, हो गया। प्रॉपर क्लिनजिंग, ट्वाइस क्लिनजिंग, जिससे आपके पोर्स क्लियर हो सके। तो अगेन क्लिनजिंग, टोनिंग, क्योंकि टोनर आपके स्किन के पोर्स को टोन करने में हेल्प करेगा, और मॉइस्चराइजर। अगर इसके अलावा भी आपके अगर आईज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आईज क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। लिप प्रॉब्लम है तो लिप्स के अकॉर्डिंग भी आप अपने प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी यही स्टॉप करती हूँ ताकि आप थोड़ा सा डिस्कशन कर सकें। डेफिनेटली आपके कई सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। चलिए, कोई डिस्कशन है अभी यहाँ पर आपको? एक्सक्यूज मी मैम, हैंड रेज कर जाएगा। एक्सक्यूज यस, मी हाँ मैम, इति। आपने बोला कि 2 टाइम्स करना है क्लेंजिंग, तो दोनों बार सोप से करना है या विदाउट सोप? एक बार पानी से और एक बार सोप से? सोप वाटर मतलब आपने जो भी अप्लाई किया उसको वॉश तो आप वाटर से ही करते हो ना। तो इट्स नॉट अबाउट लाइक कई लोगों को स्किन, मैं बता रही हूँ आपके वेदर का भी इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे ये क्यों डिस्कशन किया, सोप वाटर वट, हम लोगों के जो वाटर आ रहे हैं अभी वो अच्छा नहीं है, उससे भी वाइट ग्रे हेयर होना स्टार्ट हो गए हैं। कई लोगों को अगर स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक एक्ट जैसी प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट हो गई, स्टोन होना भी स्टार्ट हो गई। लेकिन कई लोगों का वेदर और इवन जो वाटर है वो बहुत अच्छा है, तो उनको जरूरी नहीं कि वो सोप से क्लीन करते, वो वाटर से क्लीन करके भी चल रहा है उनका। तो अगर आपको वैसा कुछ नहीं है तो इट्स ओके। अदरवाइज क्योंकि वेदर और नेचर दोनों, आप जिस नेचर में रह रहे हो, अगर आपको लिटरली किसी चीज की जरूरत नहीं है तो वहां लोग नॉर्मल कई जगह तो फेस वॉश भी नहीं करते। ठीक है, तो उनकी स्किन फिर भी शाइनी और ब्यूटीफुल है क्योंकि वहां का वेदर। लेकिन अब हमारे यहाँ पॉल्यूशन भी है, ठीक है, और सनरेज का भी इफेक्ट पड़ रहा है हमको, और डस्ट पार्टिकल और सबका भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैंने जो सोप और वाटर आपने पूछा, वो तो देखो आप जिससे भी क्लीन कर रहे हो, लाइक वाटर तो आपका कंपलसरी है ही, क्योंकि आप स्प्लैश करोगे, फेस क्लीन करोगे, क्योंकि आप सोप यूज कर रहे हो, फेस वॉश यूज कर रहे हो, जो भी, उससे आपको ट्वाइस क्लींजिंग करनी मैम हेलो। है। यस, हेलो यस सर। मैम, हम भी इसमें जुड़ सकते हैं कि ये सिर्फ फीमेल के लिए है ये? बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि फेस योगा केवल फीमेल्स के लिए है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि एक क्लास में मेल पर्सन, इवन आप सीखिए, अपने फैमिली में भी सजेस्ट कीजिए, और आप बाकी फीमेल्स को भी ट्रीट कीजिए। कोई इशू नहीं नहीं, क्योंकि इसमें आपका भी फेस है। नहीं, इट्स ओके, नहीं यू कैन नहीं, कैमरा ऑन ये रखिए। ये क्लींजिंग के लिए जो बता रहे थे तो मुझे लगा कि ये फेशियल टाइप का कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है इसमें। हम योगा को समझ के इसमें ज्वाइन किए थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, सर ने मैसेज किया है, बैच सेपरेटली भी है, मेल और फीमेल का। ठीक है, तो आप एक बार सर से और डिस्कशन कर लीजिएगा। ओके, ओके मैम। हाँ, ओके। यस मैम। मैम, मैं जानना चाहती थी कि जैसे बहुत से लोग आजकल बोलते हैं कि नाइट रूटीन में रेटिनॉल को ऐड करो, तो आप क्या उसके बारे में बाद में बात करेंगे या आज ही आप उसके बारे में, अगर बाद में नहीं नहीं, बात करेंगे देन हाँ आप बिल्कुल, ये नेक्स्ट टाइम मेरे के लिए रख सकते हैं क्वेश्चन। क्योंकि मैम जैसे मैं रेटिनॉल डिफाइन करूँ तो मैं उसको राइट, पूरा डिफाइन करूंगी, कैसे, ओके, क्यों, किस लिए, है ना। तो श्योर वो भी मैम, देन रेटिनॉल आई क्यों, वेट, नो इससे, प्रॉब्लम, ठीक है जी, ओके। लाइक सीरम भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सेम एज मैंने मेंशन किया क्लिनजिंग, तो क्लिनजिंग के लिए भी आपका एक रूटीन, जैसे मैंने अभी बोल दिया क्लिनजिंग, लेकिन आपको भी अब स्किन टाइप ही नहीं पता, स्किन पे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कौन सा क्लिनजर अच्छा है, मैं ये भी मेंशन करूंगा, आप उसकी भी टेंशन मत लें। क्योंकि यहाँ जब आप सीखने आए हो तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि स्किन टाइप कैसा होता है ना। तो आपको वो भी पढ़ा जाएगा, डिफरेंसेस स्किन में कैसे कैसे होते हैं, कि आपका कौन सा स्किन है, आप एटलीस्ट समझ सको। ठीक है, मोस्टली लोगों को अपना पता होता है, लेकिन जब आप क्लासेस लेने की बात करते हो तो आपको ये समझ नहीं आना चाहिए कि लाइक आपसे कोई डिस्कशन कर रहा है तो आप उससे पूछो तो आप वो बोलेगा लाइक शायद समटाइम ड्राई, और वेदर के अकॉर्डिंग चेंजेस भी फील करते हैं, ऐसा नहीं है। लाइक अभी समर सीजन है या विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में ऑटोमेटिकली ड्राई स्किन वाले तो बहुत परेशान होते हैं, ऑयली स्किन वाले हैप्पी रहते हैं। ठीक है, लेकिन हल्का सा ड्राइनेस वो फील करते हैं तो वो लोग थोड़ा मॉइस्चराइजर बेस पे चले जाते हैं। ड्राई स्किन वाले बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, है ना। तो वेदर के अकॉर्डिंग भी इफेक्ट करता है, तो स्किन में थोड़े से चेंजेस उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उस अकॉर्डिंग आपको चीजें भी बताई जाएंगी। ठीक है,
चाहे वो क्लेंजिंग हो, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, चाहे वो टोनर हो और सीरम हो। तो बेसिकली सीरम का एक टॉपिक अलग से चलेगा आपका, बाकी क्लेंजिंग मॉइस्चराइजर के मैं डिटेल सेंड कर दूंगी और थोड़ा सा डिस्कशन करूंगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हैंड रेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डियर्स। ठीक है, डियर्स आप वर्ड लिख सकते हो DEARS, इसको आप डिवाइड कर सकते हो। डी मीन्स ड्रिंकिंग वाटर, क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन मस्ट है। ठीक है, इसलिए क्लास में आप वाटर जरूर रख के बैठिएगा, अपने आप को हाइड्रेट रखिएगा। ठीक है, जो आपकी स्किन के लिए हेल्दी होता है। मैं नहीं कह रही आप जबरदस्ती पानी पीजिए, लेकिन आप सिप करके थोड़ा भी पानी पियेंगे क्लास में, आप टाइम निकाल के पियेंगे, तो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। एक्चुअली आपकी स्किन हेल्दी रहती है। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। लाइक विंटर सीजन आ गया, हम पानी पीना कम कर देते हैं और हम इस प्रकार मसल में ऐठन देखते हैं, क्रैम्पिंग होने से। ओके, मैं इसका रिप्लाई अभी करती हूँ। लाइक मैंने मेंशन किया कि हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन में क्या होता है, आपने पानी पिया, अब सीजन के अकॉर्डिंग भी आप देखो, आपको हाइड्रेट करना जरूरी है। आप अच्छे से पानी पीजिए। अगर हम पानी नहीं पीते तो क्रैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अगर जिनकी ड्राई स्किन है तो डैंड्रफ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन बेस्ट है। अब जब आप हाइड्रेशन की बात करते हो तो बहुत लोगों को स्टार्ट होता है लाइक हमने पानी पीना ज़्यादा स्टार्ट किया है मैम, तो यूरिन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। अब इसकी वजह से हम रात में सो नहीं पा रहे हैं, तो ल्यूक वार्म वाटर अच्छा है। आई कॉल ल्यूक वार्म वाटर, यानी हल्का गुनगुना, ना कि गर्म। दोनों में डिफरेंसेस है। तो गर्म पानी नहीं पीना, गुनगुना पानी पीना है। वो क्या है, आपके टॉक्सिन्स भी क्लियर करेगा, बॉडी के लिए भी अच्छा है, और अगर किसी को बैली फैट या वेट ज्यादा है उसके लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो डी क्लियर हो गया। ई से मतलब ईट हेल्दी। तो हम वैसे भी बेसिकली बात कर रहे थे कि अगर आप अच्छा नहीं खाओगे तो स्किन अच्छी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आप सभी जानते हो लाइक मेरा अगर स्टमक खराब रहता है बहुत ज्यादा, ऐसा है नहीं, सॉरी, मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर आप अच्छा नहीं खाते हो, अच्छी चीजें नहीं खाते हो, तो एक्ने पिंपल्स होना, ऑयली बेस बहुत तीखा खाना शुरू करोगे, आप देखोगे आपके पोर्स बड़े ओपन हो रहे हैं, क्योंकि आपके साथ हो सकता है वो प्रॉब्लम हो कि आपका पेट क्लीन नहीं हो रहा उतने अच्छे से, क्योंकि आप अच्छा खाना नहीं खाते हो। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, इसलिए ईट हेल्दी बहुत डिपेंड कर रहा है। स्किन ब्लैकनिंग की बात की थी मैंने, अगर एनीमिया है या आपकी ब्लड की कमी हो रही है तो स्किन में डार्कनिंग अजीब सी दिखाई देती है। लाइक हो सकता है आपका स्किन का रंग साफ हो, फिर भी एक अजीब सा ड्राइनेस, ब्लैकनेस और शाइन चली जाती है, वो देखने को मिलेगा। इसलिए ईट हेल्दी। ओके, ADEARS, तो ए अप्लाई सन क्रीम। ठीक है, तो इसको थर्ड स्टेप में रखा। आर रिमूव मेकअप, तो नाइट में जब आप फेस क्लींजिंग का रूल फॉलो करोगे, बेसिकली आपने दिन में जो भी अप्लाई किया, इवन आप मेकअप नहीं भी करते हो। हाँ, मैं एक बार वापस रिपीट करूंगी नीता मैम, वेट। तो अगर आपने फेस क्लीन नहीं भी, मतलब आपने फेस में मेकअप नहीं किया, तब भी आपको ट्वाइस क्लींजिंग करनी, क्योंकि डस्ट पार्टिकलर वो भी इफेक्ट कर रहे हैं, सनरेज वो भी आपको इफेक्ट करिए, आपने कुछ ना कुछ तो अप्लाई किया है, तो आप अच्छे से अपने पोर्स को क्लीन कर लीजिए, इसलिए ट्वाइस क्लेंजिंग। ठीक है, तो मेकअप रिमूव अच्छे से करना है, उसके लिए आपको ट्वाइस क्लेंजिंग का रूल फॉलो करना है। ठीक है, तो DER रिमूव मेकअप, एस से स्लीप बेटर, तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छा, गहरा और लंबा सोए। उसके लिए आपके प्राणायाम भी हैं, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी है, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी। तो ब्रीदिंग पैटर्न भी आप इम्प्रूव करेंगे, तो वो इम्प्रूव करने के बाद आप रिलैक्स फील करेंगे, जो आपके स्ट्रेस को कम करेगा, और आपका स्लीपिंग पैटर्न ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाता है यदि आप मसाज करना स्टार्ट करेंगे तो। ओके, तो वापस रिपीट कर रही हूँ। डी ड्रिंकिंग, ई ईट, ए अप्लाई सन क्रीम, आर रिमूव मेकअप, एस स्लीप पैटर्न। ओके डियर्स, ठीक है, तो अभी आपको ये सभी रूल जो मैंने मेंशन किए इसको फॉलो करना है बेसिकली, तो आप अपने फेस पे अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। ओके, और मेरी क्लास में 2 रूल कंपलसरी सभी के लिए, एक जेंटल स्माइल
ताकि आप रिलैक्स फील करें, जो आपके फेस पे नेचुरली आनी चाहिए, है ना। एक बार आप अच्छे से स्माइल करके किसी से बात करते हैं तो एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। लाइक मैं आपको ऐसे पढ़ा, कैसा लगेगा, बहुत अजीब सा ना। और थोड़ी सी स्माइल, एक पॉजिटिव चीज आपको भी इफेक्ट करती है, सेम एज वो रिफ्लेक्शन मुझे भी मिलता है ना। तो और दूसरा, एक स्माइल जो है वो आपको अंदर से भी रिलैक्स करना स्टार्ट कर देती है, यदि आप हल्का सा भी स्माइल कर रहे हो तो, है ना। कुछ देर के लिए हम वो टेंशन और वो सब भूल जाते हैं, जिससे हमारी मसल्स रिलैक्स रहती है। ठीक है, तो एक स्माइल, रिलैक्स। दूसरा, सिट प्रॉपरली। आप कभी भी क्लास में ऐसे 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 बहुत ज्यादा अपने पोस्चर को खराब मत कीजिए। आप रिलैक्स कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन ऐसे करके बैठने की, नेक टेढ़ी करने की, क्योंकि इससे भी आपके मसल्स पे गलत प्रेशर पड़ता है। ठीक है, और पोस्चर डिफॉर्मिटीज आज के समय में सबसे ज्यादा है। यस इति जी। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैं ऑलमोस्ट 2017 से योगा से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने सिखाया हुआ है योगा। मैंने ये चीज नोटिस करी है, जो स्किन का कनेक्शन जो लोग बताते हैं कि जो आप व्हाट यू ईट, जैसा आप दिखते हैं वैसे ही, जो आप खाते हैं वैसे ही आप दिखते हैं। बट मैंने ये रियलाइज करा है कि समटाइम्स इट इज टोटली डिफरेंट। मतलब लेडीज ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर, उन्हें थायराइड है, उन्हें पीरियड डिसऑर्डर्स है, दे आर हैविंग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, बट उनकी स्किन एकदम शाइन करती है। उनकी स्किन में कभी कोई ना आपको पिंपल दिखेगा ना कभी एक्ने दिखेगा, है ना। इंस्टीड ऑफ जो रेगुलर कर रहे हैं सब कुछ है, बट उनके स्किन पे आपको हर समय फ्रिकल्स, पिंपल्स। ये सेम चीज अप्लाई नहीं होती है, याद रखिएगा। किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकता है उनको बहुत ज्यादा फेस पे प्रॉब्लम दिखाई दे, किसी को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। किसी अब मैं बोल रही हूँ, लाइक मैं बहुत दिन से प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन जरूरी नहीं वो इमोशन में सबको दिखा रही हूँ। सिंपल एग्जाम्पल है ना। सेम एज हो सकता है मेरा पेट साफ ना रहा तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मेरी स्किन हेल्दी है, तो उनकी स्किन इतनी जल्दी रिएक्ट ही नहीं कर रही है। किसी किसी की बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। आप 2-3 दिन मत सो, कई लोगों को बहुत जल्दी डार्क सर्कल दिखाई देने लगते हैं, उनकी या नींद अच्छी एक्चुअली क्योंकि मैं मुझे कई बार मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ कि ये इनके अंदरूनी प्रॉब्लम्स की वजह से है, या फिर इनकी बाहर में भी खाली स्किन प्रॉब्लम है, इनको अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप अंदर जैसे आप बोल ठीक रहे है। हो कि थायराइड प्रॉब्लम है और फेस पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसल स्टिफनेस तो आप देखते हो कि फेस पे लाइंस आने लगती है। मैं आपको नॉर्मल एक, अगर अभी कल के सेशन पढ़ाऊंगी, नेक पोस्चर आप जाने तो यहाँ नेक बनने लगेगी लूज, आपको नहीं पता चल रहा उसका रीजन क्या है। शोल्डर पेन आना शुरू हुआ, अब बॉडी में और प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही है ना। सेम ऐसा हो सकता है उनका एनवायरमेंट उनको नहीं इफेक्ट कर रहा हो, लाइक वो प्रॉब्लम हो, लेकिन उनकी स्किन इतनी बेटर है कि वो चीज उसको इफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ डाइट का लिटरली कई लोगों को बहुत दिखाई देता है। मतलब वी कैन नॉट ऑलवेज कनेक्ट विद द स्किन प्रॉब्लम्स टू द इंटर, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी इंटर सबके साथ प्रॉब्लम्स सेम प्रॉब्लम नहीं होती मैम, मैंने नहीं बोला होती। ना। हाँ, सबकी अपनी अपनी बॉडी की जैसे लाइक मेरी मॉम 70 एज की है। अब जैसे आप पुराने और अभी के लोगों में बात कर लो, लाइक 70 एज के लोग घुटनों का दर्द रोते थे लाइक 80 एज पे, 70 ईयर्स पे। हमारी जनरेशन में 45 में ही कहने लगते जीनों पे चढ़ती सांस फूल रही है, क्योंकि डाइट में चेंजेस आ गए ना, चीजों में चेंजेस आ गया। ऐसे ही आपकी बॉडी में इफेक्ट है, आपकी बॉडी अलग है। हो सकता है मैं 50 एज की बात करूँ, कई लोगों को इस एज में भी 70 तक प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी। और प्रॉब्लम की बात तो अगर मैं डिस्कस करूं, लाइक किसी को स्ट्रेस की हम बात करें, थायराइड की प्रॉब्लम आज की बहुत जल्दी चल रही है। लोगों को यस समझ नहीं आ रहा थायराइड क्यों हो रहा है, डायबिटीज क्यों हो रही है। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, शुरू से खाने पीने में प्रॉब्लम नहीं कर रहा, लेकिन स्ट्रेस खाया जा रहा है। और पुराने जमाने में लोगों को स्ट्रेस नहीं होता था। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी है जो इफेक्ट कर रही है आपको। हो सकता है रेडिएशन हो सकता है आपका लाइक चीजें इफेक्ट कर रही हो आपको, कौन सी ये आपको नहीं पता, है ना। इन चीजों पे भी रिसर्च होना बाकी है। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप सोच नहीं सकते कि वो आपको इफेक्ट करें, और कई लोगों को वो नहीं इफेक्ट कर रही है। रिलैक्स है, इतना स्ट्रेस है उनकी जिंदगी में, फिर भी उन्हें थायराइड नहीं है, उन्हें डायबिटीज नहीं है, नहीं है तो नहीं है। तो सबको वो चीज इफेक्ट नहीं करती। स्किन पे हो सकता है आपको कोई चीज बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट कर रही हो, और किसी किसी को नहीं करती। तो डाइट मैंने ईट का बोला, डेफिनेटली ईटिंग हैबिट्स आपको बहुत सारे एक्ने पिंपल्स वाले लोगों से डिस्कस कीजिएगा। जैसे ही ऑयली खाना शुरू करें या गलत खाना शुरू करें, इफेक्ट करता है मैम, और जरूरी नहीं सबको करता है। हर एक बात मैंने बोला ना, जैसे स्किन आपकी ऑयली स्किन है और सेंसिटिव स्किन है, मेरी भी है। मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ आप यूज करो, आपको सूट करे जरूरी नहीं है तो आपकी भी ऑयली सेंसिटिविटी, यस उसमें भी चेंजेस है। तो ये जेनेटिकली भी चेंज हो सकता है कोई और रीजन हो, कोई और फैक्टर्स हो। तो हर एक चीज का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अभी इन सब चीजों पे इतना वर्क है, लाइक ईट खाया गलत तो तुरंत रिएक्ट करेगा, है ना। ठीक, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।
क्लियर हो गया सभी को टॉपिक? तो हमारा लास्ट का 10 मिनट डिस्कशन का रहेगा, किसी को भी डाउट हुआ करेगा तब हम डिस्कशन क्या करेंगे, ठीक है? अभी किसी को कोई और डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैम आज का वीडियो वो आज मिल सकेगा क्या? हाँ, आपको वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। आज सर आपको मे बी आज या कल में आपको रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, और जैसे ही मैं कल परसों से रिकॉर्डिंग शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी, मतलब आज रात तक आपको मिल वही जाएगा। जाएंगे सुबह। क्या कितने बजे आप काम को? गिव मी अ सेकंड। हाँ, यस मैम। आज का वीडियो कभी यस मांगी जी, 1 मिनट। हाँ यस जिनल मैम। आज का वीडियो आज ही मिलेगा कि कल या परसों मिलेगा? नहीं, एक मतलब मॉर्निंग तक मिल जाता है वैसे, लेकिन आज का रिकॉर्डिंग सेशन में भी हो सकता है आपको कल मिले, लेकिन कल से आपको रिकॉर्डिंग नाइट में ही सेंड कर दी जाएगी, ठीक है? कि वो मेरे नो प्रॉब्लम। हाँ, ओके। यस हिमांगी जी। मैम आपने जैसे कहा कि ड्रिंक प्लेंटी वाटर, तो कितना वाटर सफिशिएंट होता है? मैम इज इट देखो, डिफरेंट मेल फीमेल और बॉडी टू बॉडी, क्या है इसका सबकी कुछ हाँ रूल? मैम, सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग। जैसे आप कई लोग अगर लोगों की बात सुनोगे तो कई सिद्ध पुरुष बोलते हैं लाइक अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पानी पियो यदि आपको प्यास लगती है। आप कई जगह सुनोगे कि प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब 8 गिलास पानी पीना ही चाहिए, ठीक है? तो अगर बॉडी में रिक्वायरमेंट है तो बेसिकली मैंने अभी तक जो नॉर्मली पढ़ा है कि आपके टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए, अगर बॉडी स्किन ड्राई कर रही है तो डेफिनेटली, और विंटर्स में हम पानी पीना बंद कर देते हो तो बॉडी में अजीब सी फीलिंग भी आती है, तो कम से कम 5-7 गिलास पानी तो पीजिए ही। ये तो कंपलसरी है, तो जो हम पढ़ते हैं। फिर भी अगर किसी को लगता है लाइक हमें सर्दियों में प्यास नहीं लग रही, वो हमारे वेदर है उसकी वजह से, लेकिन फिर अगर बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पानी पिया 1 गिलास पूरा पी लिया, इसलिए बोलते पानी पियो बैठकर घूट घूट करके स्वाद के अनुसार बिल्कुल रिलैक्स होके। तो जब आप क्लास में पानी पियोगे तो वही मैंने बोला कि थोड़ा करके आप एक बोतल भर के रख लो, हो सकता है आप 1-2 घूट पियो क्लास में, इट्स ओके। हो सकता है आप ज्यादा पियो, ठीक है? तो उसकी भी मैं प्रैक्टिस आपको सिखाऊंगी बेसिकली प्रैक्टिस के लिए कि कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो हमारा क्लींजिंग रूटीन और बाकी सब हो गया दी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लींजिंग में अब आपकी ये क्लींजिंग हो गई, ईयर क्लींजिंग और माउथ क्लींजिंग भी आती है। ट्वाइस क्लींजिंग आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए थी, ठीक है? लाइक अगर टीथ क्लीन नहीं होंगे, जो भी आप च्युइंग कर रहे हो, जो भी फंसा है, तो हो सकता है दांतों का इन्फेक्शन, पेन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि हमें टंग क्लीन और टूथ क्लीन करना चाहिए, ठीक है? स्माइल भी अच्छी होती है, ओके। सेम एज ईयर क्लीन, क्योंकि अगर ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा नहीं आप कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, याद रखिए। इतना अभी सभी लोग अवेयर हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में मेंशन नहीं कर रही हूँ कि आप माचिस की तीली और ईयरबड जिससे भी कर रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा अंदर तक मत कीजिए। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इवन स्किन को भी लेकर बहुत सारी चीजें, जब आप सीरम के बारे में पढ़ेंगे तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगी जो मार्केट में मिलते हैं वो हम इजीली यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो यूज करने लायक है। मगर फिर भी स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप डॉक्टर से परचेस कीजिए। इवन मॉइस्चराइजर हो या सनक्रीम कई बार जरूरत पड़ती है, तो आप डॉक्टर से सजेशन लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया अब आप सब कुछ जानते हो, आप डॉक्टर नहीं हो अभी ठीक है? तो अगर लिटरली लगता है आपको नहीं समझने आ रहा, आप नहीं जज कर पा रहे हो, आपको स्किन पे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से ही डिस्कस कीजिए। एक डर्मेटोलॉजिस्ट पे डिस्कस कीजिए, वो आपको अच्छा और बेटर करेक्ट सजेशन देगा आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। कभी भी ऐसा नहीं है लाइक मैम ने बताया था एक्ने पिंपल्स हो रहा है, आप ये लगा लो ठीक हो जाएगा, ठीक है? अगर नहीं सूट कर, क्योंकि कई बार हम जो सेम क्रीम लगा रहे हैं, मैं आपको प्रोडक्ट भी सजेस्ट करूं तो मार्केट बेस है, लेकिन क्या पता वही चीज मुझे सूट कर रही है आपको नहीं सूट कर रही है, तो इसलिए पैच ट्राई वो भी रहता है, ठीक है? आप देखो एक माउथ प्रैक्टिस सिंपली आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रिंक योर वाटर। तो सुबह जब आप कुल्ला करते हैं अच्छे से गरारे कर सकते हैं, गला साफ करने के लिए पानी फिल करके रखते हैं तो जो माउथ लाइन आ रही होती है वो नहीं होती। तो बेसिकली पानी फिल करके आपको सेकंड होल्ड करके ड्रिंक कर सकते हैं, तो ये माउथ की लाइंस इनको भी कम करता है, और फेस पर प्रेशर जो बन रहा होता है पानी अच्छे से फिल करने पे, तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और मसल्स को स्ट्रेंथनिंग भी करता है, ठीक है? अब फ्लैट फेस के लिए करनी होती है तो दूसरी प्रैक्टिस है, ये जिनका फेस ऑलरेडी बहुत बोनी फेस होता है उनके लिए अच्छी है। तो लेकिन अगर पानी फिल करके करते हो, जब भी पानी पीते हो फिल कर लो, कुछ सेकंड होल्ड करो,
आपको रिलैक्स भी करेगा और आपकी फेशियल मसल्स को स्ट्रेंथनिंग भी करेगा। ठीक है, चलिए अभी कोई डाउट है? प्रैक्टिस हमारी कल से स्टार्ट होगी क्योंकि एक बेसिक डिटेल हमारा जो आज डिस्कशन था उसे कंप्लीट करना था। कल से डिवाइड रहेगा हमारा, आपका स्टार्टिंग प्रैक्टिस से रहेगी, वो प्रैक्टिस रिपीट कराई जाएंगी। ठीक है, सेम एज उसका थ्योरी सेशन बीच में इंक्लूड किया जाएगा ताकि आप मसल्स को रिलैक्स कर सकें। सेम एज इन दी एंड आपके टॉपिक कंप्लीट होने का अगर टाइम बचा तो वापस कुछ प्रैक्टिस इंक्लूड करके आपका डिस्कशन लाइक क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। हाँ मैम, कितने डेज की क्लास होगी वीक में? मैम मंडे टू फ्राइडे, सॉरी सैटरडे इंक्लूडेड सैटरडे। ठीक है मैम। और मैम रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी अगर किसी दिन क्लास मिस करते हैं? बिल्कुल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपने कोर्स डिटेल में देखा होगा, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आपको डिटेल्स मैंने बोला अगर टूल्स का डिस्कशन किया जाएगा तो टूल्स की डिटेल भी भेजूंगी मैं उसमें ये भी बता दूंगी कौन सा चीप है, कौन सा बेस्ट है और कौन सा एक अगर लेना चाहते हो तो कौन से अच्छी क्वालिटी का आप ले सकते हैं। ठीक है, सेम एज आपको पीडीएफ जो बुक्स वगैरह मटेरियल है वो आपको पहले ही सेंड कर दिया जाएगा। जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, कुछ चीजें मैं रिसेंटली सेंड करती हूँ, लाइक मैं आज पढ़ाने वाली हूँ तो अभी सेंड करूंगी, और कुछ बेसिक डिटेल्स जो है आपको मोस्ट ऑफ सेंड कर दी जाएगी ग्रुप। ठीक है, जो मटेरियल बेस है आपका वो मिल जाएगा। बट कोशिश कीजिए आप ज्वाइन कीजिए ज्यादा से ज्यादा, कैमरा ओपन रखिए ताकि आप चीजों को रिलेट कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, उसे फील कर सकें, ताकि आप सीख सको और सिखा सको, तभी आप अंतर नोटिस कर पाओगे। एक्सक्यूज मी मैम वन मोर व्हाट इज क्वेश्चन। वन बाय वन। कंटिन्यू। यस ममता मैम। हाँ मैम, 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा या ज्यादा टाइम लगेगा? मैम 1 मंथ है ना। ओके मैम। यस नेक्स्ट। मैम श्रुति हियर। यस What is a general age group to practice face yoga, मैम? मैम इसमें डिवाइडेड रहता है। मसाज जो होती है वो लाइक अगर आप सीरम या ये चीजें अप्लाई कर रहे हो तो एज के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन है, लेकिन फेशियल प्रैक्टिस देखिए आपने बच्चों को देखा होगा ऐसी प्रैक्टिस है, ये हमारे में भी इंक्लूड है। आप ऐसे करके घूमो, बच्चों के में भी इंक्लूड है। तो अगर फेस बच्चों को टोन कराना आप उन्हें भी फेशियल मसाज प्रैक्टिस, फेशियल प्रैक्टिसेस करा सकते हो। पोस्चर होल्ड करना है क्योंकि वो मसल स्ट्रेंथनिंग की हो सकती है, मसल टोन करने की हो सकती है, तो उसका कोई ऐसा बैड इम्पैक्ट नहीं है, बस आपको सही पता होना चाहिए। तो वो आप नॉर्मल बच्चों को भी करा सकते हो, लाइक टीनेज भी कर सकते हैं, नो इशू, डेफिनेटली वो अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें लाइक हमारे एज की तो 30+ या 35 जैसे हम क्रॉस करते हैं हमारी लाइंस बनने लगती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके लिए मसाज अच्छी होती है। तो मसाज टोनिंग और फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें डिपेंड करने लगती है, तो वहां आपको दूसरी चीजें सजेस्ट की जाती है। फेशियल प्रैक्टिस इंक्लूड रहेगी, मसाज भी इंक्लूड रहेगी, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी आपके लिए आने लगते हैं। जैसे आपकी एज होने लगती है तो आप मल्टीविटामिन लेने लगते हो ना, लाइक क्योंकि प्रॉब्लम है कि आप कितना भी डाइट ले रहे हो वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही। अब आपकी एज हो गई, आपको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, उतना वर्क आप नहीं कर सकते, सेम एज आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड चेंज होने की वजह से आपको ये चीजें जरूरत पड़ती है। ओके, यस इति जी। हाँ मैम, रात में सोते समय क्लेंजिंग के बाद वापस से आपको टोनिंग और मॉइस्चराइजर लगाना है? डेफिनेटली। ओके, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर, तीनों स्टेप्स। यस डेफिनेटली 3 स्टेप मेन है आपकी, टोनिंग सॉरी क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। आपने क्लीन करना जरूरी है कि गंदगी हट जाए, टोन करना जरूरी है ताकि पोर सिंक हो जाए, लॉक रहे, और मॉइस्चराइजर ताकि आपकी स्किन में बैरियर बना रहे, हाइड्रेट रहे, मॉइस्चराइजर रहे आपकी स्किन को। डिटेल में मैं आगे आपको सेल्स से भी दिखाऊंगी कि कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो वो जरूरी है, इतना जरूरी है बस आपके लिए अभी। ओके, सी यू टुमारो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. गुड नाइट, स्लीप वेल। Thank you, ma'am.